Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is power. In work, energy and power. Students, first of all, before proceeding to the term power, I just want to clear one thing, that energy and power are entirely different, though they both are related to work. दोनों के दोनों ही वर्क डन से रिलेटेड हैं, लेकिन एनर्जी एंड पावर आर डिफरेंट. द रीजन बीइंग, वन थिंग इज एनर्जी जो है वो है कैपेसिटी टू डू वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क जो हम स्टोर कर सकते हैं किसी चीज में, या अमाउंट ऑफ वर्क जिसके कारण वेलोसिटी आती है किसी चीज में. अगर अमाउंट ऑफ वर्क के कारण वेलोसिटी आती है तो हम काइनेटिक एनर्जी के रूप में वर्क को समझते थे, एंड अगर वर्क डन को हम स्टोर करते हैं एनर्जी के रूप में तो वो होती थी पोटेंशियल एनर्जी. नाउ दिस इज अ पावर दैट इज रिलेटेड टू समथिंग, फास्टनेस ऑफ वर्क. स्टूडेंट रिमेंबर इट, फास्टनेस ऑफ वर्क डन से रिलेटेड है ये आपका पावर वाला टॉपिक. आपने देखा होगा रेगुलर लाइफ में भी फ्यू पीपल आर वेरी एक्टिव. फॉर एग्जांपल, ए पर्सन इज क्लाइंबिंग 4-story बिल्डिंग एंड हैज टू क्लाइंब लॉट ऑफ स्टेयर्स. वो स्टेयर्स चलते चलते फुल स्पीड में अच्छे से गया स्टेयर्स, ही जस्ट क्लाइंब द स्टेयर्स. वो फुल स्पीड में स्टेयर्स को क्लाइंब करता है एंड आल्सो एट फास्ट रेट, जल्दी से जल्दी उसको क्लाइंब कर जाता है वो. दैट शोज हिज लेवल ऑफ फिटनेस एंड मोर ओवर वी कैन से दैट हाउ पावरफुल द पर्सन और मशीन. ऐसा ही कुछ मशीन्स के साथ भी होता है, दे कैन डू द वर्क एट मच फास्टर रेट, बहुत फास्ट रेट पे वो कार्य कर सकते हैं, एंड दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. सो वी कैन से फास्टनेस ऑफ वर्क डन जो मेजर करता है दैट इज अ पावर, एंड इट्स यूनिट यू कैन आल्सो फाइंड, you can also know about its how we can define the power in terms of work and time. work per unit time में हम power को कैसे define कर सकते हैं. Let's start with its proper definition and the way of proceeding. So students, concept हमेशा याद रखना, energy में सिर्फ capacity of doing work है, it has nothing to do with the fastness or slowness of the work done. But in power no definition, it is simply the rate of doing work. क्या मेजर किया इसने? बेसिकली power measures the fastness of a person or machine at which it can accomplish the work done. So this is your, what is the basic unit of power? Basic unit of power. Power is work upon time. Its units are 1 joule upon 1 second. This is the basic unit of power, that is 1 watt. 1 watt is 1 joule upon 1 second. और इसे डिफाइन करना हो 1 watt को, when 1 joule of work is done in 1 second by a body, then power is said to be 1 watt. So students, this is basically about the power, कि power क्या चीज है. रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं. अगर हम इसे थोड़ा सा और ध्यान से अगर इसे समझें in terms of formula and in terms of definition also, मान लीजिए पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. व्हाट इज 1 watt?
when 1 joule of work is done by a body in 1 second, then power is 1 watt. और सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि अगर हम मानते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अकम्प्लिश हुआ है बॉडी से इन स्मॉल टाइम dt, then what will be the power? Now force into displacement, work is always force into displacement, that is small distance को हम ds लिखेंगे dt, and ds upon dt होता है स्टूडेंट्स वेलोसिटी, क्योंकि हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमेशा होता था वेलोसिटी. तो दिस इज योर force into velocity, that is f dot v, we take it as a dot product. So force into velocity is your power. This is also one of your formula you can use. This is obviously one of the most accepted formula, and power is work upon time. So there are many ways you can accomplish this thing. You can remember this thing. Now 1 kilo, other units of power is 1 kilowatt is 10 raised to power 3 watt. If 1 megawatt हो जाएगा तो it will be 10 raised to power 6 watt for 1 megawatt. Okay students, it will be 10 raised to power 6 watt, it will be 10 raised to power 3 watt. Now we'll move further to its most commonly used unit, जो आज भी बहुत जगह काफी आपकी कंपनीज में you can see, जब आप कोई मोटरसाइकिल या ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो व्हाट विल हैपन, यू हैव हर्ड दिस टर्म मेनी टाइम्स, 1 हॉर्स पावर. हम बात करते हैं 1 हॉर्स पावर की, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? यू शुड रिमेम्बर इट, इट इज इक्वल टू 746 वॉट. इसका बहुत ज्यादा यूज होता है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स में. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. Students, what we have learnt till now is about work, energy and power. Work is simply a force into displacement in terms of mathematically. Otherwise it is when a force is applied on a body, it moves that body through a certain distance. That accounts for the work done. What is energy? Energy आप पढ़ चुके हैं already. Capacity to do work, ये हमने capacity को किस रूप में पढ़ा था? Kinetic और पोटेंशियल. और नो पावर इज वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क. अब वर्क यहाँ पे स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी आ सकता है पावर के केस में, और वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन. सो रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स, एंड नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पावर.